A very good morning to all of you. Welcome you all in class 11th economics. So in previous class we have completed the chapter 9 of your statistics for economics. The name of the chapter was the measures of the central tendency, in which we have discussed the median, partition value and the mode. Okay, so in today's class we are going to start the new chapter of your statistics for economics, that is measures of the dispersion. Okay, so this chapter is chapter 10. Okay, so in your statistics you have 12 chapter and we have reached to chapter 10. Okay, so in this chapter we are going to study the there are many topics in this chapter that has been deleted from your syllabus. Okay, only because of the COVID. So in this chapter we are going to study the meaning of the dispersion. Okay, so what is the meaning of the dispersion, objective of measurement of the dispersion, what are the different objective, why we are going through the measurement of the dispersion, characteristics of the measure of the dispersion. Next one is measures of the dispersion, in which we will discuss the absolute and the relative measures. So next is methods of the measuring dispersion. So what are the different methods of measuring the dispersion? Next one is calculation of the range. Okay, so this topic, that is calculation of the range and the coefficient of the range, so it has deleted from your syllabus. As well as next topic, that is calculation of the interquartile range, quartile deviation, coefficient of the quartile deviation, that is also deleted from your syllabus. Next one is calculation of the mean deviation and its coefficient. It is also deleted from your syllabus. Okay, so the three topic that has been deleted from your syllabus is range. Okay, next one is quartile deviation, and the next one is mean deviation, Okay, so all these is deleted. ये सारे क्या हो गया है, आपके सिलेबस से डिलीट हो गए. ठीक है, तो ये आप लोग को नहीं पढ़ना है. नेक्स्ट जो हमें पढ़ना है वो है आपका कैलकुलेशन ऑफ द स्टैंडर्ड डेविएशन. स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है वो हमें पढ़ना है. इसका कैलकुलेशन भी पढ़ना है और इसका कोएफिशिएंट ऑफ स्टैंडर्ड डेविएशन भी पढ़ना है. बट हमको रेंज, क्वार्टाइल डेविएशन, इंटर क्वार्टाइल रेंज एज वेल एज मीन डेविएशन ये हमें नहीं पढ़ना है. हमें जो पढ़ना है वो स्टैंडर्ड डेविएशन एंड इट्स कोएफिशिएंट है. नेक्स्ट है आपका लॉरेंस कर्व. So what is the meaning of the Lorentz curve? Next is the conclusion. So the best measure of the dispersion. Okay, so we will discuss all these things in this chapter. Okay, so let's start with the introduction. So in previous chapter we learned about the measures of the central tendency. Okay, previous chapter में हमने क्या पढ़ा? Measures of the central tendency as that value of the data which is capable to represent the universe. ठीक है, तो वो वैल्यू ऑफ डेटा पढ़ा है जो क्या है, वो कैपेबल है कि वो पूरे यूनिवर्स को क्या करे, रिप्रेजेंट करे. सो एवरेजेस सिंप्लीफाई द कॉम्प्लेक्स डेटा एंड द मेक द स्टडी इजी. तो एवरेज क्या करता है, जो कॉम्प्लेक्स डेटा है उसको क्या करता है, सिंपल बनाता है, और फॉर स्टडिंग ऑल्सो इट बिकम सो मच सिंपलर एंड द इजी. सो येट एवरेजेस सफर फ्रॉम द ग्रेट लिमिटेशन. ठीक है, जो एवरेजेस होते हैं वो बहुत सारे लिमिटेशन से क्या होते हैं, फेस करते हैं. दैट दीज डू नॉट गिव कंप्लीट डिटेल और द इंफॉर्मेशन ऑफ द डेटा. ये क्या करते हैं, कंप्लीट डिटेल और इंफॉर्मेशन डेटा के बारे में नहीं देते हैं. द एक्चुअल वैल्यू मे डिफर फ्रॉम द एवरेज वैल्यू. जो एक्चुअल वैल्यू आ रही है और जो एवरेज वैल्यू है वो दोनों क्या है, डिफर करती है. सो द एवरेज वैल्यू डज नॉट रिवील द वेरिएबिलिटी प्रेजेंट इन द डेटा. तो जो एवरेज वैल्यू है वो ये रिवील नहीं करता है कि डज नॉट रिवील दैट दी वेरिएबिलिटी प्रेजेंट इन द डेटा, कि डेटा जो भी हमारे पास है उसमें कितनी ज्यादा वेरिएबिलिटी, कितना ज्यादा उनमें वेरिएशन हो रहा है. सो इन दिस चैप्टर वी विल स्टडी अबाउट दी सच डिफरेंसेस और द डिस्पर्जन. अब इस चैप्टर में हम वही डिफरेंस और वही डिस्पर्जन पढ़ने जा रहे हैं.
ठीक है, तो पहला है आपका मीनिंग ऑफ द डिस्पर्जन। मीनिंग ऑफ द डिस्पर्जन, okay, so dispersion is the extent to which values in a distribution differ from the average of the distribution। ठीक है, डिस्पर्जन क्या होता है, एक्सटेंट होता है जिसमें वैल्यू जो है डिस्ट्रीब्यूशन में डिफर है फ्रॉम दी एवरेज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। जो एवरेज डिस्ट्रीब्यूशन है उससे क्या है, जो वैल्यू है उस एक्सटेंट पे वैल्यू क्या है, डिफर कर रही है। तो एग्जाम्पल इसमें दे रहा है, बहुत लेंथी एग्जाम्पल है, इफ यू हैव बुक you can see it, that is 3 friends Ram, Rahim, Maria are chatting over a cup of tea। ठीक है, वो लोग क्या करें, चैटिंग कर रहे हैं with cup of tea। So during the course of their conversation they start talking about their family income। फिर वो लोग ने क्या किया, फैमिली इनकम के बारे में डिस्कस करने लगे। So Ram tells that there are 4 members in his family and the average income per member is 15,000। उसने ये बताया कि उसके यहाँ 4 मेंबर हैं फैमिली में और सबकी एवरेज इनकम क्या आ रही है, 15,000 आ रही है। रहीम ने बोला, रहीम सेज दैट द एवरेज इनकम इज द सेम इन हिज फैमिली। ठीक है, एवरेज इनकम क्या है उसके यहाँ भी सेम है, दो द नंबर ऑफ द मेंबर है 6, बट उसके यहाँ जो मेंबर है वो कितने हैं, 6 है। मारिया सेज दैट देयर आर 5 मेंबर इन हर फैमिली। उसके घर में 5 मेंबर हैं, बट आउट ऑफ विच 1 इज नॉट वर्किंग। उस 5 में क्या है, एक लोग वर्क नहीं कर रहे हैं। शी कैलकुलेट्स दैट एवरेज इनकम इन हर फैमिली टू। उसने भी एवरेज इनकम अपने घर में कैलकुलेट किया और उसको भी क्या है, उसका भी 15,000 ही आया। जैसे राम, रहीम और मारिया का भी तीनों का एवरेज इनकम सेम ही आया। दे आर लिटिल सरप्राइज्ड। वो लोग क्या लिटिल सरप्राइज हो गए दैट दे नो द मारिया फादर इज अर्निंग अ ह्यूज सैलरी। क्योंकि उन्हें पता था, क्योंकि जो मारिया के फादर है वो बहुत ज़्यादा सैलरी अर्न करें, तो भी इनके यहाँ 15,000 ही क्यों एवरेज इनकम आ रही है। सो दे गो इनटू डिटेल्स एंड गैदर द फॉलोइंग डेटा। फिर उन्होंने क्या किया, सारा जितने लोगों हैं एवरेज जितने जो घर में मेंबर्स हैं उनकी उन्होंने क्या किया, पूरा एक डेटा बनाया, एक शीट बनाया कि इतने मेंबर्स हैं, उनकी इतनी इनकम हो रही है, उतनी इनकम हो रही है, इतनी अलग अलग इनकम हो रही है। बट जब उनकी टोटल इनकम की बात आई, टोटल इनकम जब घर में देखा गया तो रहीम के यहाँ क्या था, सबसे ज्यादा इनकम आई। ठीक है, बट वेरिएशन यहाँ पे किसका था, नंबर ऑफ मेंबर्स में। किसी के यहाँ 4 मेंबर्स थे, किसी के यहाँ 5 मेंबर थे बट एक वर्किंग नहीं था, और रहीम के यहाँ 6 मेंबर थे बट उनकी एवरेज इनकम क्या थी, कम थी। तो ये क्या थी, एवरेज इनकम विल बी द सेम। बट जब तीनों ने कैलकुलेशन किया तो तीनों की जो एवरेज इनकम आ रही थी वो सेम आ रही थी। सो वो लोग ने ये देखा कि इट इज क्वाइट ऑब्वियस दैट एवरेजेस ट्राई टू टेल ओनली वन एस्पेक्ट ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज रिप्रेजेंटेटिव साइज ऑफ द वैल्यूज। ठीक है, तो टू अंडरस्टैंड इट बेटर यू नीड टू नो द स्प्रेड ऑफ वैल्यूज ऑल्सो। ठीक है, इसको समझने के लिए हमें स्प्रेड ऑफ वैल्यूज भी जानना पड़ेगा। सो यू कैन सी दैट इन द राम्स फैमिली, राम की फैमिली में डिफरेंसेस इन इनकम आर कंपैरेटिवली लोअर। जो डिफरेंस है उनकी फैमिली में, जो मेंबर्स की जो डिफरेंस है वो क्या है, लोअर है। इन रहीम्स फैमिली डिफरेंस आर हायर। रहीम के फैमिली में क्या है, इनकम क्या है, हायर है, एंड द डिफरेंसेस आर द हाईएस्ट। और मारिया के फैमिली में क्या है, जो डिफरेंस है वो क्या है, वो बहुत ज्यादा है। ठीक है, फिर क्या कह रहा है कि नॉलेज ऑफ ओनली एवरेज इज इनसफिशिएंट। अब अगर हमें ये पता चल गया कि एवरेज इनकम हमने निकाल लिया कि सबके यहाँ 50,000 हो रही है, तो ये पूरा डेटा कंप्लीट नहीं हो रहा है, क्योंकि हमें जो चेंजेस हमने देखा वो तो हमने स्टडी ही नहीं कर पाए। फिर कह रहा है कि इफ यू हैव अनदर वैल्यूज विच रिफ्लेक्ट द क्वांटम ऑफ वेरिएशन, कोई ऐसी वैल्यू है जो क्या रिफ्लेक्ट कर रही है कि क्वांटिटी ऑफ वेरिएशन इन वैल्यूज, योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ अ डिस्ट्रीब्यूशन इंप्रूव कंसिडरेबली। ठीक है, फिर जो आपका अंडरस्टैंडिंग है कि जैसे डिस्ट्रीब्यूशन हुआ है वो क्या है, इंक्रीज करेगा और इम्प्रूव करेगा। फॉर एग्जाम्पल, पर कैपिटा इनकम गिव्स द एवरेज इनकम, कि पर कैपिटा अगर हम डिस्कस करते हैं तो ये क्या देता है, पर कैपिटा इनकम बस हमें एवरेज इनकम बताती है कि कंट्री में कितनी एवरेज इनकम है।
सो अ मेजर ऑफ द डिस्पर्जन कैन टेल यू अबाउट इनकम इनइक्वालिटीज। जो भी मेजर ऑफ डिस्पर्जन है जो हम यूज करने जा रहे हैं वो क्या बता रहा है कि इनकम में कितनी इनइक्वालिटी है। अभी तक हमने पढ़ा कि एवरेज इनकम हम निकाल देते थे, बताते थे कि हाँ इतना आ रहा है। अब हम पढ़ेंगे कि क्यों इतना इनइक्वालिटी जो आ रही है उसका रीजन क्या है। जरूरी नहीं कि जो हमें आंसर एट द एंड आ रहा है, जो हम एवरेज निकाल रहे हैं तो ऊपर भी जो सारे वैल्यूज होंगे वो सेम होंगे, ऐसा जरूरी नहीं है। ठीक है, देयर बाई improving the understanding of the relative standard of living enjoyed by the different strata of the society। ठीक है, जो भी रिलेटिव जो स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग है वो अलग अलग है, तो लोग क्या है उसी के अकॉर्डिंग अपनी स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को एंजॉय कर रहे हैं। तो अब कह रहा है सो वी कैन से दैट, हम कह सकते हैं कि डिस्पर्जन इज द एक्सटेंट टू विच, डिस्पर्जन एक एक्सटेंट है विच वैल्यूज इन अ डिस्ट्रीब्यूशन, जो वैल्यूज है डिस्ट्रीब्यूशन में वो डिफर कर रही है एवरेज ऑफ द डिस्ट्रीब्यूशन। समझ में आ गया ना कि पहले हमने क्या पढ़ा कि हमने देखा एवरेज इनकम तीनों राम रहीम और मारिया के फैमिली की तीनों की क्या आ रही थी, 15,000 ही आ रही है। बट जब हम इनकम को उनका इवेलुएट किए तो इनकम क्या थी, दोनों तीनों की डिफरेंस थी। तो यही बता रहा है कि जो वैल्यू है डिस्ट्रीब्यूशन का वो क्या है, वो डिफरेंट है व्हेन वी सी विद द एवरेज ऑफ द दैट वैल्यू। हम एवरेज अगर देखें और उनका डिस्ट्रीब्यूशन देखें तो इन दोनों में डिफरेंस होता है, यही बताता है आपको डिस्पर्जन। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू डॉक्टर बोले डिस्पर्जन इज द मेजर ऑफ द वेरिएशन ऑफ द आइटम्स। ठीक है, डिस्पर्जन क्या है, मेजर है वेरिएशन का आइटम्स का। फिर नेक्स्ट डेफिनेशन है अकॉर्डिंग टू LR कोनोर। सो अकॉर्डिंग टू हिम डिस्पर्जन इज अ मेजर ऑफ द एक्सटेंट टू विच इंडिविजुअल आइटम्स वेरी। ठीक है, डिस्पर्जन क्या है, मेजर है उस एक्सटेंट तक जिसमें हम क्या करते हैं, इंडिविजुअल आइटम्स, जितने भी इंडिविजुअल आइटम्स दिए हुए हैं वो क्या करते हैं, वेरी करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट कह रहा है व्हाट आर द डिफरेंट ऑब्जेक्टिव एंड द मेजरमेंट ऑफ द डिस्पर्जन। ठीक है, ऑब्जेक्टिव्स, नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव्स, ऑब्जेक्टिव्स ऑफ मेजरमेंट डिस्पर्जन। ठीक है, इसमें क्या कह रहा है, इसमें 4 ऑब्जेक्टिव लेके चल रहा है। पहला है आपका टू चेक द रिलायबिलिटी ऑफ द एवरेज, रिलायबिलिटी ऑफ द एवरेज। ये क्या चेक करता है कि जो भी एवरेज है हम लोगों ने कैलकुलेट किया है वो कितना ज्यादा रिलायबल है, वो कितना ज्यादा ऑथेंटिक है, इसको चेक करता है। नेक्स्ट है टू नो द एक्सटेंट ऑफ वेरिएशन, टू नो द एक्सटेंट, कि किस एक्सटेंट तक उसमें वेरिएशन आ रहा है। ठीक है, टू नो दी चेक द reliability, to know the extent of variation. Next one is to compare dispersion of 2 or more set of data. To compare, dispersion means difference. To compare dispersion of 2 or more sets of data। ठीक है, लास्ट है टू फैसिलिटेट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, टू फैसिलिटेट स्टैटिस्टिकल, मतलब जो भी हमें स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करना है उसमें क्या करता है, ये हेल्प करता है। ठीक है, ये हो गया आपका ऑब्जेक्टिव ऑफ मेजर ऑफ डिस्पर्जन, जिसमें क्या है, इट चेक्स द रिलायबिलिटी ऑफ द एवरेज, एवरेज कितना ज्यादा ऑथेंटिक और रिलायबल है। टू नो द एक्सटेंट ऑफ वेरिएशन, जो भी वेरिएशन है उसमें किस एक्सटेंट तक, उसमें जो भी डिफरेंट एवरेज दिया हुआ है, डिस्ट्रीब्यूशन है, उसमें किस लेवल तक वेरिएशन हो रहा है। टू कंपेयर द डिस्पर्जन ऑफ 2 और मोर सेट्स ऑफ डेटा, 2 और मोर सेट्स ऑफ डेटा के बीच में कंपैरिजन भी करता है। एंड टू फैसिलिटेट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस करने में ये
फिर क्या करता है, फैसिलिटेट भी करता है। ठीक है, तो पहला पढ़ते हैं, टू चेक द रिलायबिलिटी ऑफ द एवरेज थ्रू मेजर्स ऑफ द डिस्पर्जन। मेजर ऑफ डिस्पर्जन के थ्रू वी ट्राई टू फाइंड आउट द वेदर द एवरेज सो कैलकुलेटेड रिप्रेजेंट द सीरीज ट्रूली और नॉट। ठीक है, हम थ्रू दी मेजर ऑफ द डिस्पर्जन क्या करते हैं, वी ट्राई टू फाइंड आउट, हम ये फाइंड करते हैं कि जो एवरेज हमने कैलकुलेट किया है वो पूरी सीरीज को ट्रूली रिप्रेजेंट कर रहा है कि नहीं। ठीक है, ये किसके थ्रू हम करते हैं, डिस्पर्जन के थ्रू, कि जो भी हमने एक एवरेज निकाल लिया, मीन मीडियन मोड के थ्रू हमने कुछ एवरेज निकाल दिया, मतलब मीन निकाल लिया हमने, तो एट द एंड हम देखते हैं डिस्पर्जन के थ्रू देखते हैं कि जो भी हमने निकाला है मीन, वो जो एवरेज, वो क्या जो सीरीज हमारे पास गिवन थी जिसमें हम फ्रीक्वेंसी की बात करते हैं, एक्स देता है वेरिएबल, वो उसको ट्रूली रिप्रेजेंट कर रहा है या नहीं कर रहा है। सो इफ वैल्यू ऑफ डिस्पर्जन इज स्मॉल, अगर डिस्पर्जन की वैल्यू क्या हो गई है, स्मॉल हो गई, इट मीन्स देयर इज हाई डिग्री ऑफ होमोजेनिटी। अगर डिस्पर्जन जो भी डिफरेंस आ रहा है वो कम हुआ, मतलब आपका करेक्टनेस और ऑथेंटिसिटी एज वेल एज रिलायबिलिटी क्या होगी, ज्यादा होगी। सो देयर इज हाई डिग्री ऑफ होमोजेनिटी अमंग द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल, जो वैल्यूज है वेरिएबल के उसकी होमोजेनिटी ज्यादा होगी। एंड एवरेज टेकन फ्रॉम दीज वैल्यू इज रिलायबल, और जो भी एवरेज हम ले रहे हैं इन वैल्यू से वो भी रिलायबल होगी। एंड ट्रूली रिप्रेजेंट दी सीरीज, और वो क्या करेगा, सीरीज को भी ट्रूली रिप्रेजेंट करेगा। सो इफ वैल्यू ऑफ डिस्पर्जन इज हाई, अगर वैल्यू डिस्पर्जन की हाई हो गई, इट मीन्स देयर इज ग्रेटर डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी। इसका मतलब क्या हो गया कि अगर वैल्यू क्या हो गई आपकी ज्यादा हो गई, तो वहां पे डिस्पर्जन भी क्या हो गया, ज्यादा हो गया। ठीक है, ग्रेटर डिग्री ऑफ वेरिएबिलिटी अमंग द वैल्यूज ऑफ द वेरिएबल, डिफरेंट जो वेरिएबल्स एंड एवरेज टेकन फ्रॉम दीज वैल्यू इज नॉट रिलायबल, और जो भी हमने एवरेज लिया है इन सारे वैल्यू से वो भी रिलायबल नहीं होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट है अब टू नो द एक्सटेंट ऑफ द वेरिएशन, कि किस एक्सटेंट तक इसमें वेरिएशन है। सो थ्रू द मेजर ऑफ द डिस्पर्जन के थ्रू वी वांट टू फाइंड आउट द डिग्री ऑफ वेरिएशन। हम क्या फाइंड आउट करना चाहते हैं कि किस डिग्री में वेरिएशन हो रहा है बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू एंड द एवरेज वैल्यू, कि जो भी एक्चुअल वैल्यू दी हुई है और जो भी एवरेज हमने कैलकुलेट किया, इन दोनों के बीच में कितना ज्यादा डिफरेंस शो कर रहा है। सो इफ वेरिएशन इज ह्यूज, अगर एवरेज वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू में वेरिएशन क्या हो गया, ज्यादा हो गया, इट वुड मीन दैट एवरेज वैल्यू इज नॉट कैपेबल ऑफ द रिप्रेजेंट द सीरीज। इसका मतलब यही है कि वो जो हमने एवरेज कैलकुलेट किया है वो इतना कैपेबल नहीं है कि वो सीरीज को रिप्रेजेंट कर सके, क्योंकि अगर वेरिएशन ज्यादा हो गया, डिस्पर्शन ज्यादा हो गया, मतलब कि हमने कहीं ना कहीं इसमें गलत किया है, इसलिए वो वैल्यू क्या है, वो ज्यादा आई है। तो वो जो उस वेरिएशन की वजह से, उस डिफरेंस की वजह से वो ट्रूली रिप्रेजेंट नहीं कर रहा है पूरी होल सीरीज को। नेक्स्ट है आपका टू कंपेयर द डिस्पर्जन ऑफ द टू और द मोर सेट्स ऑफ डेटा। ठीक है, टू और मोर सेट्स ऑफ डेटा में आपका कंपैरिजन। सो थ्रू मेजर्स ऑफ द डिस्पर्जन के मेजर के थ्रू वी कैन मेक कंपैरिजन बिटवीन टू और मोर सीरीज। हम क्या कंपैरिजन करते हैं, दो से ज्यादा सीरीज में हम कंपैरिजन करते हैं विथ रिस्पेक्ट टू डिस्पैरिटी बिटवीन देम, कि किस रिस्पेक्ट में, कि उन दोनों के बीच में कितनी ज्यादा डिस्पैरिटी है, कितना ज्यादा इनइक्वालिटी है, कितना ज्यादा उन दोनों वैल्यूज और उन सेट्स में, कितना डेटा के सेट में कितना ज्यादा डिफरेंस है। सो ग्रेटर डिस्पर्जन वुड मीन्स लेस स्टेबिलिटी। अगर ज्यादा डिस्पर्जन होगा, अगर ज्यादा इनइक्वालिटी होगा, इसका मतलब क्या है कि स्टेबिलिटी क्या है, उन लोग के बीच का रिलेशन भी क्या है, कम है। जस्ट ऑपोजिट, अगर वैल्यू ज्यादा हुई तो स्टेबिलिटी कम हुई, अगर डिस्पर्जन कम हुआ तो स्टेबिलिटी ज्यादा हुई। ठीक है, नेक्स्ट है आपका टू फैसिलिटेट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस। एंड स्टैटिस्टिकल एनालिसिस को क्या करता है, ये फैसिलिटेट करता है। सो थ्रू मेजर ऑफ डिस्पर्जन वी कैन कंप्यूट इंपॉर्टेंट स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स। ठीक है, हम मेजर ऑफ डिस्पर्जन के थ्रू डिफरेंट स्टैटिस्टिकल टेक्निक्स को क्या कर सकते हैं, कंप्यूट कर सकते हैं। कंप्यूट मतलब सॉल्यूशन निकाल सकते हैं, कंप्यूटेशन कर सकते हैं, लाइक रिग्रेशन कर सकते हैं, कोरिलेशन करेंगे, स्क्यूनेस करेंगे। दिस इंक्रीज द एक्यूरेसी ऑफ दीज स्टैटिस्टिकल स्टडीज। इसके थ्रू क्या होगा कि जो भी स्टैटिस्टिकल स्टडीज है उनकी एक्यूरेसी इंक्रीज होगी।
चलिए नेक्स्ट है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेजर ऑफ द डिस्पर्जन। नेक्स्ट टॉपिक है आपका कैरेक्टरिस्टिक्स। ठीक है, characteristics of the measure of the dispersion। measure of dispersion। ओके, क्या कह रहा है? A measure of dispersion actually should possesses all the characteristics of the good average। ठीक है, जो measure of dispersion होता है उसमें क्या होता है, वो सारे characteristics होते हैं जो किसी good average में होते हैं, because it is the average of the second order। क्योंकि ये second एक order का मतलब एक तो पहला central tendency, उसके बाद ये second order का एक average होता है। ठीक है, तो कोई भी average में जो एक good average में characteristics होते हैं वो सारे कैरेक्टरिस्टिक्स आपके डिस्पर्जन में भी होते हैं। सो एन आइडियल मेजर ऑफ द डिस्पर्जन शुड बी, तो एक आइडियल मेजर क्या हो जाएगा? आइडियल मेजर हम किसी को ले लेंगे, आइडियल मेजर ऑफ डिस्पर्जन। उसमें क्या हो जाएगा? पहला हो जाएगा आपका अनअफेक्टेड बाय फ्लक्चुएशन इन सैम्पलिंग। affected by fluctuation in sampling। नेक्स्ट है आपका rigidly defined। rigidly defined। Third one is based on the observation of the series। Based on the observation of the series। Next है आपका easy to understand। easy to understand, easy to calculate, easy to calculate and simple to apply, and simple to apply। Next one is, and the last one is capable of further algebraic treatment। Capable of further algebraic treatment। ठीक है, ये सारे आपके क्या होंगे? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द मेजर ऑफ द डिस्पर्जन। कि कोई भी अगर गुड कैरेक्टरिस्टिक्स गुड डिस्पर्जन है तो उसमें कौन कौन से ऐसे कैरेक्टरिस्टिक्स आपके होंगे। तो आइडियल मेजर ऑफ डिस्पर्जन में हमने क्या देख लिया? इसमें है आपका अनअफेक्टेड फ्लक्चुएशन इन दी सैम्पलिंग। मतलब जो भी हम सैम्पलिंग ले रहे हैं वो क्या है कि चाहे जितनी भी फ्लक्चुएशन हो जाए, चाहे जितना भी डिस्क्रिपेंसीज हो जाए, इंक्रीज हो डिक्रीज हो, बट ये क्या होगा? अनअफेक्टेड होगा, उस पर अफेक्ट नहीं होगा। नेक्स्ट वन इज रिजिडली डिफाइंड। वो क्या होगा? रिजिडली डिफाइंड होगा। नेक्स्ट वन इज बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ द सीरीज। जो भी सीरीज आपके पास दी हुई है उसके ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड होगा। नेक्स्ट वन इज इट इज इजी टू अंडरस्टैंड। इसको समझना क्या है? बहुत इजी है। नेक्स्ट वन इज इजी टू कैलकुलेट एंड सिंपल टू अप्लाई। ये कैलकुलेट करने में भी क्या है? बहुत इजी है और सिंपल है, इसको अप्लाई करना भी बहुत ज्यादा टिपिकल नहीं है। एंड द लास्ट वन इज इट इज कैपेबल ऑफ द फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट। कि अगर आगे अलजेब्रिक ट्रीटमेंट करना है तो ये क्या है? इतना कैपेबल है।
ठीक है, तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। पहले फिर से क्या है, सो एन आइडियल मेजर ऑफ द डिस्पर्जन शुड बी अनअफेक्टेड बाय द फ्लक्चुएशन इन सैम्पलिंग। ठीक है, ये क्या होना चाहिए, अनअफेक्टेड होना चाहिए जो भी फ्लक्चुएशन सैम्पलिंग में हो रहे हैं, सो दैट वी मे हैव एन ओवरऑल समरी मेजर ऑफ द डिस्पर्जन। इससे क्या होगा कि वी हैव एन ओवरऑल समरी, हम क्या करेंगे, इससे ओवरऑल समरी मेजर ऑफ द डिस्पर्जन की कैलकुलेट कर सकते हैं। अगर प्रॉपरली आपके पास क्या है कि अगर अनअफेक्टेड है, फ्लक्चुएशन कोई भी हो रहा है, ठीक है, फ्लक्चुएशन हो रहा है, सैम्पलिंग जो भी हमने डेटा कलेक्ट किया है इसमें फ्लक्चुएशन हो रहा है, बट इसमें क्या है कि चाहे जितनी भी, अगर कोई भी गुड आपका क्या होगा, आइडियल मेजर ऑफ डिस्पर्जन होगा, तो चाहे जितना भी फ्लक्चुएशन हो जाए वो अफेक्ट नहीं होगा, सो दैट वी मे हैव एन ओवरऑल समरी मेजर ऑफ डिस्पर्जन। इससे क्या होगा, जिससे हम ओवरऑल समरी डिस्पर्जन की ले सकते हैं। तो एक आइडियल मेजर ऑफ डिस्पर्जन होने के लिए इसकी फर्स्ट कंडीशन क्या हो गई कि हम ऐसा डिस्पर्जन ले जो भी फ्लक्चुएशन हो रही है सैम्पलिंग में उससे वो अफेक्ट ना हो। नेक्स्ट है आपका रिजिडली डिफाइंड। So rigidly defined so that it is easy to apply the measure of study the variation। अगर ये rigidly defined होगा तो इससे क्या होगा, it become easy हो जाएगा कि अप्लाई करना जो भी मेजर्स है स्टडी ऑफ डिस्पर्जन और दी वेरिएशन को स्टडी करने में ये बहुत सिंपल हो जाएगा कि हम इसको कहीं भी अप्लाई कर सकते हैं। अगर ये रिजिडली होगा, अगर बहुत ज़्यादा फ्लेक्सिबल हो गया, बहुत ज़्यादा फ्लक्चुएशन हो रहा है, तो हम इसको किसी भी कंडीशन पे अप्लाई नहीं कर सकते हैं। बट अगर ये क्या हुआ आपका, ये रिजिडली डिफाइंड है, एकदम रिजिड है, तो ये इजी हो जाता है कि अगर हमको वेरिएशन में स्टडी करनी है तो वी कैन इजीली अप्लाई। थर्ड वन इज बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ द सीरीज। सो इट इज बेस्ड ऑन द ऑब्जर्वेशन ऑफ द सीरीज सो दैट ऑल द आइटम्स आर गिवन इक्वल इम्पोर्टेंस। ठीक है, ये किस पे बेस्ड होता है, सीरीज के ऑब्जर्वेशन पे, सो दैट हम क्या कर सकते हैं, जो भी आइटम्स हम गिवन है उसको हम इक्वल इम्पोर्टेंस दे सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्या कह रहा है, इजी टू अंडरस्टैंड। इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड सो दैट इट इज सिंपल टू कॉम्प्रीहेंड। हमको अगर क्या करना है, कॉम्प्रीहेंड करना है, मतलब अंडरस्टैंड करना है, या अगर हम प्रॉपरली कोई भी चीज समझ पाएंगे तभी हम इसको प्रॉपरली एग्जीक्यूट कर पाएंगे। तो ये बहुत सिंपल होता है, क्योंकि अभी आप न्यूमेरिकल्स देखिएगा तो क्या है, बहुत ही सिंपल है, इजी टू अंडरस्टैंड है, समझ में भी आ जाता है। देन इट इज सिंपल टू कॉम्प्रीहेंड। तो कॉम्प्रीहेंड करने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए इट बिकम सो मच सिंपलर। नेक्स्ट इज इजी टू कैलकुलेट एंड सिंपल टू अप्लाई, सो दैट वन कैन इजिली फाइंड द वेरिएशन बिटवीन द एक्चुअल वैल्यू और एन एवरेज वैल्यू। अभी हमने पढ़ा था कि अगर हम लोग डिस्पर्जन में अगर हम लोग अप्लाई करते हैं, वेरिएशन देखते हैं, तो कोई भी इसके थ्रू, डिस्पर्जन के थ्रू एक्चुअल वैल्यू जो भी गिवन है, जो भी हमने क्या कैलकुलेट किया, एवरेज वैल्यू, जो हमने एवरेज वैल्यू लिया है और जो एक्चुअल वैल्यू है, उनके बीच में अगर वेरिएशन होता है थ्रू द डिस्पर्जन वी कैन आइडेंटिफाई। इजिली हम इसको क्या कर लेते हैं, आइडेंटिफाई भी कर लेते हैं कि किस कंडीशन पे क्या है, ये वेरिएशन आ रहा है, कितना ज्यादा वेरिएशन आ रहा है। जितना अगर ज्यादा वेरिएशन आएगा तो मतलब स्टेबिलिटी उतनी कम होगी, वाइस वर्सा रिलेशन है, निगेटिव है। और जितना आपका डिस्पर्जन कम आएगा, स्टेबिलिटी उतना ज्यादा सही है। मतलब सीरीज एक्चुअल वैल्यू और एवरेज वैल्यू में उतना ज्यादा रिलेशन होगा। अगर इनका जो डिफरेंस है वो कम आएगा तो एवरेज वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू में रिलेशन ज्यादा दिखेगा कि हमने क्या किया है, वो ऑथेंटिक है। बट जितना ज्यादा डिफरेंस दिखेगा उतना ज्यादा आपको पता है कि एवरेज वैल्यू और एक्चुअल वैल्यू में भी चेंजेस आएगा। ठीक है, तो लास्ट है आपका कैपेबल ऑफ द फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट। ठीक है, फर्दर अलजेब्रिक ट्रीटमेंट में क्या है, ये कैपेबल भी है, सो दैट स्टैटिस्टिकल एनालिसिस लाइक स्क्यूनेस, कोरिलेशन, रिग्रेशन कैन बी स्टडीड। ओके, देखिए क्या होता है, अलजेब्रिक ट्रीटमेंट मतलब हम आगे इसको स्टैटिस्टिकल एनालिसिस में यूज कर सकते हैं। अभी आपको ही आगे चैप्टर्स में क्या क्या पढ़ना है, आपको कोरिलेशन पढ़ना है, इंडेक्स नंबर पढ़ना है। ठीक है, अभी 2 चैप्टर जो है इसके बाद, तो उसमें क्या है, अगर ये हम डिस्पर्जन, अगर हम वेरिएशन इन
किसी भी सेट्स ऑफ डेटा में देख लेंगे, समझ लेंगे कि इतना वेरिएशन है, तो आगे जो भी हमको स्टडी करना है, ट्रीटमेंट करना है, स्टैटिस्टिकल एनालिसिस को एग्जीक्यूट करना है किसी भी कंडीशन में, उसमें हम क्या कर सकते हैं, ये कैपेबल होना चाहिए कि आगे की अलजेब्रिक ट्रीटमेंट में हम इसको यूज कर सके। ठीक है, तो आज व्हाट वी हैव डिस्कस्ड, वी हैव स्टार्टेड द न्यू चैप्टर 10, that is measures of the dispersion, in which we have discussed what is the meaning of dispersion, what are the objectives of the measurement of the dispersion. Next topic we have discussed the characteristics of the measure of dispersion. Okay, so it's all about your today's class. We will continue this chapter in the next class also. So in the next class we will start the measures of the dispersion, so in which we have discussed the absolute measure of dispersion and the relative measures of dispersion. Okay, thank you.